Hello everybody, how are you all? I hope you people are doing well. So, once again, I'm with you. As we were discussing the syllabus of MPTET Week, we have already discussed a lot of topics, है ना? Including Broken Wings, a famous poem written by Sarojini Naidu. I have already given the lecture over it, so you can also see that, and the link is in the video description. So, now moving forward with a new author who was just working as a person in the field, just like a farmer, or I should say, plowman. And he did that for around a decade, or I should say, more than a decade. And it was his profession for a long, but unable to elude anything out of it. And just because of unsatisfaction, he simply switched his profession from being a farmer to a poet. So basically, this is a information about a person who also performing a lot of tasks, including cobbling, and he was also doing some sort of journalism, and he was also a part-time teacher. So this given brief information about a famous English poet who is Robert Frost. So today we're going to discuss about the biography of Mr. Robert Frost as it is mentioned in our syllabus of MPTET Worthy. Okay. So if we talk about Robert Frost, why we called Robert Frost as the poet of the village, yeah, poet of the land, yeah, poet of the farming. Why? What is the reason? If we have a poet named Robert Burns, he is known as plowman poet. But if we talk about Robert Frost, as the title is gone to Robert Burns, otherwise today we will be calling Robert Frost as a plowman poet just because already this pen name is given to someone else. Otherwise, we must have respected Mr. Robert Frost by this pen name. Okay. So if we talk about the major themes used by Mr. Robert Frost in his poetry, so we can see a lot of themes, including, listen, village is the main theme, and the things, the village chores, and the farming and some sort of things, everything that deal in the life of village can be seen in the poetry of Mr. Robert Frost. And along with that, if I would say that when you go through the biography of Robert Frost, you will find a lot of elements that he was going through severe pain as he had around six children, and out of six, only two remained to life, otherwise, four was died, and this became pain for him. है And out of that, he has written a famous work that is Home Burial. It is actually a famous poem written by him as he has lost his child, or I should say children. Then he composed a famous poem that is Home Burial. It was the remembrance of his children losing from life. So this was the basic information I was about to give you about Mr. Robert Frost. So now let's move forward with the biographical points in the biography of Mr. Robert Frost. Let's move forward. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की बायोग्राफी के बारे में है ना। देख, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1874 में, 1874, एंड ही वाज डाइड इन 1963. यू सपोज टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, है ना, ये बात आपको याद रखनी है. Robert Lee Frost was one of the most celebrated and widely read American poets of 20th century, known for his deceptively simple conversational style and vivid depiction of New England's life. Frost combined traditional verse form with modern themes of isolation, choice, duty, and human resilience. जो फ्रॉस्ट साहब की पोएट्री में सबसे ज्यादा मेजर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वे हैं कि उनकी जो पोएट्री है वो कॉलोक्यूअल लैंग्वेज में लिखी जाती है. कॉलोक्यूअल लैंग्वेज कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कन्वर्सेशनल टोन हो, है ना, जो कि उसमें लिखा हुआ है ना. तो कन्वर्सेशनल टोन में ये अपनी पोएट्री लिखा करते थे, वो अलग बात है कि ये मीटर और राइम का इस्तेमाल करते थे, है ना. इनकी मोस्ट ऑफ दी पोम्स में आप ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं उनको मीटर्स में बांधने का प्रयास करते थे, ठीक है, और थीम्स और बहुत जनरल मुद्दे होते थे, है ना. जैसे उदाहरण के तौर पर कई एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, जैसे टू ट्राम्प्स इन द मड टाइम, है ना. तो ये एक फेमस पोम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. इसमें आप क्या पाएंगे,
इसमें एक्चुअली कहानी है एक व्यक्ति की जो ऐसे ही रैंडमली वुड में, है ना, जंगल में कहीं भी लकड़ी तोड़ने लग रहा है। एंड उसके बाद में दो कोई व्यक्ति वहां से पास होके जा रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं दैट यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क विच इज समहाउ रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, सो वुड यू डू दिस फॉर अस, वी विल पे यू इन एक्सचेंज, है ना, कि क्या तुम ये हमारे लिए करोगे, क्योंकि आप ये कर रहे हो तो क्या ये आप हमारे लिए करोगे, इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे, है ना। तो यहां से आप क्या पाएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो कहीं ना कहीं एक गांव की एक लेबर की जिंदगी प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से वो एक थीम के बारे में कह सकते हैं, बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति का पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही जगह मिल जाए तो रिजल्ट्स उम्मीद से कई गुना बेहतर मिल सकते हैं, है ना। तो ये पोम मेजरली इस बारे में बात करती है। तो इस प्रकार की रूरल इमेजरी से रिलेटेड इन्होंने कई पोम्स लिखी हैं, है ना। मैं समय के साथ जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ता जाऊंगा, सीधे सीधे टच करके इनका एक एक वर्क आपको बताता जाऊंगा और धीमे धीमे उसका जो है समरी भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्ली लाइफ, है ना। देखिए, देखिए अर्ली लाइफ में हमें पता है कि उनकी जो बर्थ हुई थी वो हुई थी 1874 में, है ना, और उनकी जो डेथ हुई वो 1963 में हुई। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अर्ली लाइफ से, है ना, जीवन के शुरुआती ईयर से बात कर रहे हैं। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो मार्च 26 को 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, वे एक पेशे से जर्नलिस्ट थे, है ना, और कहीं ना कहीं इन्हीं के प्रोफेशन ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को भी इन्फ्लुएंस किया, जिसके बाद में उन्होंने भी जर्नलिज्म में हाथ ट्राई किया। वो अलग बात है कि वो सक्सेसफुल ना हो पाए, और जिसके बाद में धीमे धीमे वो पोम्स की तरफ इंक्लाइंड होना शुरू हो गए, है ना। उनकी माँ थी इजाबेले मूडी, है ना, ये एक स्कॉटिश इमिग्रेंट थी, है ना। तो ये इनके माता पिता के बारे में हो गए, और स्थान कहाँ जन्म हुआ था तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलिए आगे, फ्रॉस्ट वाज नेम्ड आफ्टर द कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली, ठीक है। ये एक, देखिए यूएसए में क्या है, आपने जैसे गठबंधन सुना है ना, ऐसे ही गठबंधन की कई बार वहां पे सरकारें हुआ करती थी, है ना। तो वहीं से ये जो टर्म निकाला गया है कॉन्फेडरेट, ठीक है। तो वहां एक व्यक्ति विशेष थे रॉबर्ट ई ली के नाम से, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा, ठीक है, उनके नाम पे इनका नाम रखा। हिज फादर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1885। अब यहां से आप मुझे सिंपली एक बात बताइए, कमेंट में लिखिएगा कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज में कौन सा ऑथर, कौन सा पोएट ट्यूबरक्लोसिस से मरा, ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो जो है इनके जो पिताजी साहब थे, किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के, उनकी मृत्यु हुई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और वो 1885, ठीक है। वैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, है ना, जब वो मात्र 11 साल की उम्र में रहे होंगे, द फैमिली मूव टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स टू लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। पिताजी की डेथ के बाद में जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके यहाँ पे फैमिली ने मूव किया, है ना, माँ के साथ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने मूव किया, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गए, है ना। और कहाँ पे गए, लॉरेंस में। लॉरेंस सिटी कहाँ पड़ती है, मैसाचुसेट्स में। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, किस ऑथर को बैले ऑफ एमहर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और उसका जो है जन्म हुआ था मैसाचुसेट्स यूएसए में, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आंसर भी दे रहा हूं, ठीक है, बाद में दे दूंगा मैं इनका आंसर, है ना। तो जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो है जन्म तो हमें पता है कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है।
उसके बाद में आगे की इनकी जीवन की कुछ जो सालें हैं वो व्यतीत हुई मैसाचुसेट्स में ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, ठीक है, आपको याद रखना है। ही अटेंडेड लॉरेंस हाई स्कूल, इन्होंने शुरुआती जो पढ़ाई थी वो लॉरेंस हाई स्कूल से करी, जहां वे मिले थे एलिनोर मेरियम वाइट से। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की वाइफ है ना, फ्यूचर में ये वाइफ बनी, ठीक। एज ए स्टूडेंट फ्रॉस्ट एक्सील्ड इन एकेडमिक्स एंड शेयर्ड वैलिडिक्टोरियन ऑनर विद एलिनर इन 1892। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वैलिडिक्टोरियन क्या चीज होती है। लिसन, you must have known a lot people who must get high ranks always in class, है ना, and then at the end of session they supposed to give a speech as they had I should say good position in the class always remain, है ना, same, है ना। तो कुल मिला के एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में हमेशा अव्वल रहा है ना। तो जब यहाँ इंडिया में तो ऐसा कोई फंक्शन विशेष है नहीं, लेकिन बाहर की जो कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? वहां देखा जाता है जब कोई अच्छी रैंक्स लाता है और काफी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो टर्म के लास्ट में वो एक स्पीच देता है ना। तो ये इसी को बोला जाता है वैलेडिक्टोरियन, ठीक है। ये एक प्रकार का सम्मान है ना, सभी बच्चों को संबोधित करते हैं इसमें। तो ये शेयर किया था इन्होंने एलिनोर मैरियम वाइट के साथ 1892 में, ठीक है। अब इनकी एजुकेशन और अर्ली करियर को देख लीजिए। 1892 से 1899, है ना, शुरुआती पीरियड में फ्रॉस्ट अटेंडेड डर्थमाउथ कॉलेज ब्रीफली इन 1892 बट लेफ्ट आफ्टर लेस देन अ टर्म, है ना। इन्होंने जो है डर्थमाउथ कॉलेज जो है अटेंड करा था कुछ समय के लिए, है ना, 1892 में। लेकिन इन्होंने एक पूरा सेमेस्टर भी नहीं होने दिया और उससे पहले इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब बात की जाए इनके प्रोफेशन की, तो इन्होंने कई प्रकार की जॉब्स की। जैसे ये शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएटली ये टीचर भी रहे, साथ ही साथ इन्होंने कॉबलिंग भी करी, मतलब जूते सिलने वाले, अपने कई व्यक्ति मोची जिनको बोल देते हैं। इन्होंने एज अ फैक्ट्री वर्कर भी काम किया और बाद के समय में इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया, है ना। जब इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया, चूंकि ये इनके पिताजी का एक प्रोफेशन रहा, ठीक है, तो यहां से आप अकेला इनको नहीं, आप ऐसे कई बड़े बड़े ऑथर्स उठा के देखेंगे, इनके जीवन की लिटरेरी शुरुआत ही यहीं से होती है। यदि वे किसी मैगजीन के लिए काम करते हैं, वे जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा लिटरेचर के क्षेत्र में आगे आते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है ना। तो देखिए, इन 1894 1894 में ही सोल्ड इज फर्स्ट पोम। ये इनकी फर्स्ट पोम है जिसका नाम है माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। नाउ यू टेल मी वन थिंग, could you let me know the name of the poet who has written a famous elegy over the death of a cat? Okay, and you supposed to give answer in the comment box, ठीक है। ये एक फेमस वर्क है ना। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वो कैट थी किसकी, है ना। तो रॉबर्ट वॉलपोल के, हॉरेस वॉलपोल का आपने नाम आवश्यक रूप से सुना होगा। रॉबर्ट वॉलपोल साहब जो कभी प्रेसिडेंट रहे, कहाँ पे, यूके में, है ना। तो उनके पुत्र थे हॉरेस वॉलपोल, और हॉरेस वॉलपोल की जब कैट मरी थी तो उसके कह सकते हैं उसको रिमेंबर करने के लिए एक एलिजी लिखी गई थी, है ना, कैट की डेथ पे। उसके बारे में आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो किसने लिखा, ठीक है। चलिए चलिए, उस ऑथर का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके द्वारा रिटन एक फेमस वर्क बता देता हूँ। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड करके एक फेमस वर्क है, उन्होंने वो भी लिखा है। चलिए अब बताना है ना। अब इन्होंने जो है इसको बेच दिया था किसको, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी को, किसको, इंडिपेंडेंट मैगजीन को, $15, ठीक है, आपको याद है ना। कब, एक लंबी कोर्टशिप के बाद। कोर्टशिप क्या होती है, किसी व्यक्ति के साथ आज की लैंग्वेज में, बॉलीवुड की लैंग्वेज में उसको डेट करना करेगा, एक लंबे समय के बाद में जो है इन्होंने शादी करी। चलिए, ही एनरोल्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1897। यहां से लेके 1897 से 1899 तक ये यहां रहे, बट लेफ्ट बिफोर अर्निंग अ डिग्री ड्यू टू हेल्थ एंड फाइनेंशियल रीजंस, है ना। तो किसी विशेष शारीरिक समस्या के चलते या फिर पैसों की कमी के होते हुए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया।
है ना, आपको याद रखना। देखिए, क्योंकि ये बहुत संघर्ष कर रहे थे, इन्होंने कई प्रोफेशन आजमाए, ये किसी में भी सक्सेस नहीं हुए, तो इनको क्या है, इनके पिताजी की डेथ होगी, उसके बाद में इन्होंने अपनी सिटी बदली, ठीक है, कैलिफोर्निया से मैसाचुसेट्स के। तो वहां इनको जो है प्रॉपर्टी मिली, है ना, इन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की और काफी भूमि थी, है ना, काफी लैंड था। तो वहां इन्होंने फार्मिंग करने का प्रयास किया, तो उस बारे में ये है। देखिए, ये प्रोसेस थी वो 1900 से 1912 के बीच में थी, 1900 टू 1912। ओके, देखिए, मूव टू अ फार्म इन डेरी, न्यू हैम्पशायर, है ना। अब इनका एक फेमस कलेक्शन है जिसको पुलित्जर प्राइज मिला है, वो है न्यू हैम्पशायर, है ना। तो वो इसीलिए है, इसी के नाम पर रखा है जहां इनका जो है फार्म हुआ करता है ना, डेयरी में। गिवन टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, ये जो प्रॉपर्टी थी इनके ग्रैंडफादर ने इनको दी। तो इन्होंने क्या है, अपना हाथ आजमाया किसमें, कृषि में, है ना, एग्रीकल्चर में। वन अनफॉर्चुनेटली इनको वहां भी सक्सेस नहीं मिली, फिर इनको स्विच करना पड़ा एक बार फिर अपना प्रोफेशन। कंटिन्यूड राइटिंग पोइट्री वाइल टीचिंग इंटरमिटेंटली। जब ये, अब यहां से इन्होंने देखा, इन्हें निराशा हाथ लगी, यहां से इन्होंने देखा इनको निराशा हाथ लगी, तब ये आगे बढ़े। तो क्या होता है, अब चूंकि सक्सेस हो नहीं रहे थे एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं ये बीच बीच में पढ़ाने भी जाते थे कई इंस्टीट्यूशंस में, है ना। तो वहां ये थोड़ा बहुत पोट्री पे भी हाथ आजमा रहे थे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखने लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि इन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया था। द फार्म ईयर्स gave Frost much of the rural imagery and themes for which he became famous. Listen. आप इनकी पोट्री में क्या पाएंगे, जो रूरल एरियाज है ना, रूरल इमेजरीज हैं, गांव किस प्रकार के होते हैं, क्या होता है गांव में, है ना, लोग बाग कैसे काम करते हैं, लेबर क्लास कैसे काम करती है ना, किस प्रकार की इवनिंग होती है, किस प्रकार की मॉर्निंग होती है, किस प्रकार के बड़े बड़े बर्चेस के ट्री होते हैं, है ना, किस प्रकार के खेतों के बीच में दीवार लगाई जाती है जिसका एग्जाम्पल मैंडिंग वॉल, है ना। तो इस प्रकार की ये सारी जो इमेजरीज हैं, इन्हीं रूरल इमेजरीज का इस्तेमाल करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कई पोम्स लिखे, है ना। कहने का तात्पर्य यही है, जितनी भी मेजर इनकी हाईलाइटेड पोम्स हैं, उन सारी पोम्स का आइडिया इन्हें इसी फार्म से रहकर मिला, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस था, इन्होंने रूरल लाइफ देखी थी, इसलिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सक्सेस मिल नहीं रही थी, कोई बड़ा पब्लिशिंग हाउस इनके पास था नहीं कि जिसके थ्रू ये अपनी पोम्स को पब्लिश करवा सकें, पब्लिशर नहीं मिल रहा था। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर, जस्ट लाइक आई शुड से आर के नारायण साहब ने काफी स्ट्रगल किया था, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं बाहर से ग्राहम ग्रीन ने उनका सपोर्ट किया था। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब थक गए और कुछ दिख नहीं रहा था उनको, तो उन्होंने फैसला लिया स्विच करने का अमेरिका से इंग्लैंड के लिए। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय पे पोइट्री बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, और कह सकते हैं उससे कुछ दिन पहले ही इनका जब इंग्लैंड में आगमन हुआ, उससे कुछ समय पहले ही जो है पोइट्री बहुत फली फूली थी, रोमांटिसिज्म किया। ठीक है, तो इन्होंने फैसला लिया इंग्लैंड के लिए, है ना। इन 1912 फ्रॉस्ट एंड हिज फैमिली सेल टू इंग्लैंड टू रिस्टार्ट हिज लिटरेरी करियर, है ना। परिवार के साथ, सह परिवार रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने जो है कह सकते हैं गमन कर दिया इंग्लैंड की दिशा में, और ये 1912 के आसपास वहां से निकले अपनी फैमिली के साथ। ठीक है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो इंग्लैंड से, क्षमा चाहूंगा, जो अमेरिका से इंग्लैंड आए, बिल्कुल उसी प्रकार एक और फेमस ऑथर हैं जो इंग्लैंड से अमेरिका गए। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं, सोचिए, कोशिश करिए, देख मैं बताता हूँ। डब्ल्यू एच ऑर्डन करके एक फेमस ऑथर हैं, ठीक है, जिन्होंने कई फेमस वर्क्स लिखे हैं। तो बिल्कुल रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की तरह उन्होंने भी जो है अपनी नेशनलिटी बदल ली थी। ठीक है, वो इंग्लैंड से यूएसए चले गए। उनके कई फेमस वर्क हैं, जैसे उन्होंने वर्ल्ड वार के बारे में लिखा है, सितंबर 1 1939। इसमें वो सीधा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मैं कैसे अच्छा वाला कॉफी हाउस में बैठा हुआ था जब मुझे धमाकों की आवाज सुनाई, कुछ इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन है।
उन्होंने इवन जो W.H. ऑर्डन है उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है विलियम बटलर येट्स की, एक फेमस जो आयरिश ऑथर है ना। साथ ही साथ में उन्होंने एक और फेमस वर्क लिखा है जिसको ललावाई कहते हैं, जिसको हिंदी में लोरी बोलते हैं, है ना, जो बच्चे सोते हैं उनको सुनाई जाती है उसको, है ना। तो कुछ ये फेमस वर्क्स हैं W.H. ऑर्डन के, बीच में आ गया तो मैंने आपको याद दिला दिया, क्षमा चाहूंगा, कई बार मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ बोलते बोलते। ठीक है, देखिए अब इनकी जो पहली किताब थी वो पब्लिश हुई थी अ बॉयज बिल 1913, है ना, 1913 में लंदन में इनकी पहली किताब पब्लिश हुई अ बॉयज बिल के नाम से, आपको याद रखना है ना। पहला वर्क कई बार पूछा जाता है ना। या हो सकता है उनका सीक्वेंस पूछ ले, तो सीक्वेंस भी आप इनके यहाँ जो लिस्ट है ना उसमें देखिएगा, डेट डली हुई है, ईयर डला हुआ है, तो उससे आपको पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद में नॉर्थ ऑफ बोस्टन के नाम से एक और कलेक्शन आया 1914 में, है ना, 1914 में ये भी आया, जिसमें एक फेमस पोम थी मेंडिंग बॉल, है ना। मेंडिंग बॉल के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये एक विशेष प्रकार की इमेजरी है जिसमें ऑथर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कोई फील्ड है, कोई खेत है, ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा दो खेतों के बीच में एक बाउंड्री होती है ना। जो बाउंड्री होती है उसको देहाती भाषा में कई बार मेड बोल दिया जाता है, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो वहां मेड के बजाय दीवार खड़ी हुई है और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जो दोनों कह सकते हैं जो फार्मर हैं दो अलग अलग खेतों के, वो म्यूचुअल कॉरपोरेशन से उस दीवार पर काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच में सेपरेशन हो जाता है ना, फिजिकल बाउंड्रीज की वजह से। तो ये इस पे गौर करती है ना, इस पे बता, इसके बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एक और फेमस वर्क लिखा है इसी में नॉर्थ ऑफ बोस्टन में, वो है डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। इसमें कहानी है सिलास नाम के एक किसान की, या फिर सिलास नाम के एक वर्कर की, जो वॉरेन नाम के व्यक्ति के यहाँ काम किया करता था। तो फसल कटने वाली थी और कहीं कोई विशेष आवश्यकता की स्थिति में सिलास को अपने मालिक वॉरेन का काम छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, वॉरेन का जो है काम छोड़ के सिलास को जाना पड़ा, और फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात जो है उसको वो वापस आया है अपने मालिक के यहाँ। ठीक है, तो उसका जो मालिक है वॉरेन, वो जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जस्ट बिकॉज कि जब मुझे नीड थी तब तुम चले गए। उसके बाद में जो वॉरेन थे उनकी वाइफ थी मैरी, तो वो कहीं ना कहीं काम करने का, सूद करने का प्रयास करती है अपने हस्बैंड वॉरेन को कि वन शुड गो टू हिज होम, और आई शुड से वंस होम, जस्ट बिकॉज इट इज द ओरिजिनली प्लेस वेयर ही और शी बिलोंग टू, है ना। कोई भी व्यक्ति विशेष हो एक घर से बिलोंग करता है, आफ्टर ऑल उसको घर ही जाना होता है कोई भी व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बस इतना ही है ना। तो ये थी द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, और इवन इसी पोम में अंत में ये व्यक्ति इन्हीं के यहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, इसकी मौत भी हो जाती है ना इन्हीं के यहाँ। अब आफ्टर एप्पल पिकिंग हुआ, इसमें लेबर क्लास के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है एप्पल पक रहे हैं पेड़ पे, फसल कैसे समय के बाद पकती है, एक लंबे एफर्ट के बाद, एक लंबी देख रेख के बाद, फिर किस प्रकार से सेबों को ले जाया जाता है, जो सेब ऊपर से गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका साइडर बनाया जाता है, उनका जूस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थी एप्पल पिकिंग। ठीक है, आपको याद रखना है ये तीनों कहाँ है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914। ठीक है, और ये आफ्टर एप्पल पिकिंग आपके सिलेबस में भी है, वर्ग 1 में, है ना। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल यही कंटिन्यू करते हैं। In England, he befriends like Ezra Pound, Edward Thomas. Pound had to promote his work to American audiences. Listen, एजरा पाउंड कैसा था कि वे सीमित नहीं थे केवल इंग्लैंड तक या केवल अमेरिका तक, वे समय के साथ स्विच करते रहते थे, इधर उधर इधर उधर, है ना। अब क्या था, क्योंकि ये नए आए थे, है ना, और कहीं ना कहीं एजरा पाउंड का संबंध अमेरिका से रहा है, तो उन्होंने मदद की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, है ना। इनका एक फेमस कोलैबोरेटेड आई शुड से एक ग्रुप है, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। डायमोक, ये ग्रुप का नाम है। ठीक है, इस ग्रुप के सदस्य थे एजरा पाउंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडवर्ड थॉमस, एक दो कोई और ऑथर होंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप की पोएट्री को डायमॉक पोएट्री भी कहा है, इस नाम से एक वर्क भी पब्लिश हुआ है ना, डायमॉक पोएट्री की। तो
इसी ग्रुप के अंदर जो है एजरा पाउंड साहब ने कई बार मदद की रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, ठीक है। और इनके जो फेमस वर्क थे, चूंकि इन्होंने पलायन किया था, है ना, इन्होंने अमेरिका से इंग्लैंड के लिए पलायन किया था, तो ये इंग्लैंड में समय के साथ धीमे धीमे फेमस होते चले गए। उसके बाद में इनके जितने भी फेमस पब्लिश्ड वर्क थे उनको पब्लिश करवाने का जिम्मा लिया एजरा पाउंड ने। एजरा पाउंड को हल्के में मत लेना। एजरा पाउंड वो व्यक्ति था जिसकी वजह से, सुनिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है, और जिसने यूलिसिस लिखा है, विलियम बटलर यीट्स, ठीक है, और आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, इवन एकिंसन, कुछ और ऐसे ऑथर्स हैं जिनका करियर सेटल किया इस एक व्यक्ति ने। सोचिए कितनी दम होगी इसमें। इसने अपने बलबूते पे कई पोइट्स को ऊपर ले गया, नोबलिस्ट को ऊपर ले गया, है ना। इवन वेस्टलैंड में टीएस एलियट साहब कहते हैं इनके लिए, किसके लिए, एजरा पाउंड के लिए, बेटर क्राफ्ट में, है ना। तो आपको याद रखना है, ये भी कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगे, आपको नहीं पता कब काम आ जाएंगे, है ना, तो ध्यान से सुनना है। तो इनके साथ जो इनकी मित्रता हुई। और ये एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड की बात करी जाए यदि, ये एडवर्ड थॉमस, ये एडवर्ड थॉमस कारण बने हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोम लिखने का। कौन सी, रोड नॉट टेकन, है ना, क्योंकि एडवर्ड थॉमस ने क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भाग लिया, है ना। वही वाली बात है कि इनका जो निर्णय था वर्ल्ड वार फर्स्ट में जाने का, वो कुछ ठीक नहीं था, है ना। तो जब ये जा रहे थे तो उस समय पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने इनके लिए पोम लिखी, रोड नॉट टेकन। तो वो डिवोटेड है एडवर्ड थॉमस के लिए, आपको ये भी याद रखना है ना। चलिए अब हम आगे चलते। अब इन्होंने फेम प्राप्त कर ली, है ना, फेमस पोएट बन गए ये। अब वापस इनकी वापसी हुई अमेरिका में। अब सुनिए, 1915 से लेके 1920, है ना, 1920, ये इनका समय है जब ये वापस अमेरिका में आए अपनी धरती पे। रिटर्न टू यूएस इन 1915, है ना, बाइंग अ फार्म इन फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर, है ना, फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर, इस जगह पे आके इन्होंने जो है एक वापस जमीन खरीदी एंड बिगन अ लॉन्ग कैरियर ऑफ टीचिंग पब्लिक रीडिंग्स एंड राइटिंग। इन्होंने प्रॉपर्टी तो खरीदी लेकिन ये उसमें एज अ फार्मर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इन्होंने जारी रखा अपनी टीचिंग को, पढ़ाने को। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर भी पढ़ाते थे, पर वही है, पढ़ा रहे हैं फिर रुक गए, फिर पढ़ा रहे हैं फिर रुक गए, इस प्रकार से स्विच करते रहते। इन्होंने अपनी पोम्स की कई जगह पब्लिक रीडिंग्स करी। उदाहरण के तौर पर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनका जो शपथ समारोह होता है ना किसी प्रेसिडेंट का, तो वहां इन्होंने जो है पोट्री रिसाइट करी थी, है ना। कौन सी वाली, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, है ना, ये जो है पोम रिसाइट करी थी इन्होंने वहां भी, ठीक है। और वो भी तब जब इनको दिखता नहीं था, है ना, इनकी आंखें चली गई थी। एक और पोर्ट था जो समय के साथ में अंधे हो गए थे, आप मुझे बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, जॉन मिल्टन, है ना, 44 साल की उम्र में। सुनिए अब चलते हैं आगे। अब इनका एक और फेमस वर्क है माउंटेन इंटरवल के नाम से, ठीक है, 1916 में ये पब्लिश हुआ। और इसमें कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे द रोड नॉट टेकन, ये आपके सिलेबस में शामिल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक और पोम है बर्चिस। बर्चिस कहानी है बड़े बड़े पेड़ों की, है ना। जो ये एक पेड़ होता है बहुत लंबा, जैसे आपने यूकेलिप्टस का पौधा देखा होगा, बस अंतर इतना है, यूकेलिप्टस की जड़ मजबूत होती है, मोटी होती है, तो वो झूले की तरह ऐसे झुकता नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं होता है ना। तो ये जो बर्चेस हैं ये काफी लंबे लंबे पेड़ हैं, ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, तो ये झूलने लगते हैं। तो इस पे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने बहुत ही कोलोक्वल सिंपल लैंग्वेज में, कन्वर्सेशनल टोन में, इसमें वो कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस बर्चिस वृक्ष का, इस पेड़ का, है ना, इस ट्री का टेढ़ा होने का कारण क्या है, बैंड होने का कारण क्या है। तो उसमें कई अनुमान लगाते हैं, कहते हैं कि बर्फ पड़ी होगी, ज्यादा बर्फ की वजह से ये टेढ़े हो गए, है ना। और यदि बर्फ नहीं पड़ी है तो कोई मेरे जैसे कोई बच्चा आया होगा जो इस पेड़ के ऊपर पहले चढ़ा होगा, चढ़ने के बाद में इसके सबसे ऊंचले हिस्से पर पहुंच के उससे लटक के नीचे उतरा होगा, इस वजह से ये पेड़ टेढ़े हो गए, है ना। तो कुछ इस प्रकार से वो चाइल्डहुड की मेमोरीज को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने कभी ऐसे इंसिडेंट्स को विटनेस किया हो अपनी लाइफ, है ना।
हिज पोएट्री कंबाइंड, अब उनकी स्टाइल की बात की जाए, हिज पोएट्री कंबाइंड ट्रेडिशनल मीटर विद कोलोक्वियल स्पीच, है ना। कोलोक्वियल स्पीच मतलब एक ऐसी स्पीच जो आम जन की बोलचाल की भाषा हो। व्हाट ही कॉल्ड द साउंड ऑफ सेंस, आपसे वो पूछ सकता है व्हाट इज द साउंड ऑफ द सेंस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, राइमिंग मीटर होना चाहिए और साथ में कोलोक्वियल स्पीच होना चाहिए, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ओमर खैयम करके एक फेमस ऑथर है, रुबैयत स्ट्रेंजा उस स्ट्रेंजा का नाम है, तो उसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो मीटर है ना, उसको फॉलो किया है अपनी पोट्री में, याद रखना ये। चलिए आगे चलिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पुलित्जर मिला है, ये कोई आम बात नहीं है, मैं समझता हूँ। इसीलिए इनको फाइनेस्ट लिरिक पोइट भी कहा जाता है ना। इसीलिए इनकी कई पोम्स यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं, आप देखेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले न्यू हैम्पशायर को मिला 1923 में, है ना। फ्रॉस्ट हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज 1924, ये पब्लिश हुआ था 1923 में, और इनको पुलित्जर मिला 1924 में, है ना। और इसी में फेमस पोम थी स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, है ना। और एक और फेमस पोम थी, वो है द फायर एंड आइस। ये द फायर एंड आइस सीबीएसई और एमपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल है। इस टाइटल को उठाया है दांते की इन्फर्नो से। इन्फर्नो एक पार्ट है, ठीक है, किसका, दांते की डिवाइन कॉमेडी का। दांते एलिगेरी को फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ज्यादा कुछ बता रहा हूं तो घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ सुनना है, कुछ नहीं है, आपको काम आएगा। आप कहीं किसी अन्य एग्जाम में बैठेंगे तो वहां भी काम आएगा, ठीक है, याद रखना। फायर एंड आइस में कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति या तो ये दुनिया घृणा से खत्म होगी या फिर ये दुनिया लालच में खत्म होगी, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो फायर एंड आइस में वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक और फेमस वर्क है कलेक्टेड पोएम्स 1930, ये पब्लिश हुआ था, ये सेकंड पुलित्जर है, इसको पुलित्जर मिला 1931, ठीक है। उसके बाद में अ फर्दर रेंज 1936, इसको थर्ड पुलित्जर मिला 1937 में, एक एक साल, है ना। उसके बाद में अ विटनेस ट्री 1942, इसको फोर्थ पुलित्जर मिला 1943, ठीक है। आपको ये 4 पुलित्जर याद रखने हैं। उसके बाद में ये कुछ और फेमस वर्क्स हैं जो मुझे लगे कि जरूरी हो सकते हैं, जैसे वेस्ट रनिंग ब्रुक। ब्रुक कह सकते हैं एक स्ट्रीम, आपने छोटा सा मतलब नाला नहीं कह सकते एक्चुअली, नाले में कह सकते हैं गंदगी होती है, लेकिन जो ब्रुक होती है वो बिल्कुल साफ होती है ना। तो जैसे वो मान लीजिए कोई नदी है ना, तो छोटी सी कैनाल निकल रही है ऐसी, मतलब हार्डली 1-2 फीट की मान लो, 2-3 फीट मान लो, तो कोई ऐसी जगह है ना पतली, वहां से पानी जो है रिस के निकल रहा है ना। तो ये उसी का एक विविड डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, है ना। वेस्ट रनिंग ब्रुक में 1928 पब्लिश्ड है। स्टेपल बुश के नाम से भी एक फेमस वर्क है जो पब्लिश हुआ 1947 में। इन द क्लियरिंग 1962, आपको ये फेमस वर्क्स याद रखना है। अब एज अ पोएट सब पढ़ते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्ले राइटिंग में भी कहीं ना कहीं अपना हाथ आजमाया, उन्होंने प्रयास किया लिरिकल ड्रामास लिखने का, ठीक है। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं। कोई भी जानता होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब एक फेमस लिरिसिस्ट थे, लेकिन बहुत कम लोग, या फिर मैं कहूँ 1-2% लोग जानते होंगे कि वे उन्होंने अपने जीवन में कुछ फेमस ड्रामास भी लिखे, ठीक है। तो ये वो देख, अ वे आउट के नाम से 1917 में उन्होंने एक ड्रामा लिखा। द काउज इन द कॉर्न 1929, ये भी एक फेमस ड्रामा है। अ मास्क ऑफ रीजन, अ मास्क ऑफ मर्सी, ये दोनों इन्फ्लुएंस्ड हैं पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीकिन, जिनको दिया है मिस्टर जॉन मिल्टन ने। तो आपको ये याद रखना है, ये कुछ फेमस प्लेस हैं, ठीक है, याद रखना। हिज प्लेस दो लेस पॉपुलर देन हिज पोइट्री शोज हिज इंटरेस्ट इन ड्रामेटिक डायलॉग, ठीक है। चूंकि कम इंटरेस्ट दिखाते हैं या लोगों को कम पसंद आए, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को ड्रामा में भी इंटरेस्ट था, ठीक है। अब कुछ पब्लिक फिगर और इनके ऑनर्स वो भी देख लीजिए आप। became an American icon, widely quoted and frequently invited to public events just to recite the poems written by him, है ना, जिससे वो आए और अपनी पोम रिसाइट करें, है ना। दो एट एमहर्स्ट कॉलेज, ये वैले ऑफ एमहर्स्ट कहा जाता है एमिली डिकिंसन को,
है ना, बता देता हूँ। एंड सर्व्ड एज अ पोएट्री कंसल्टेंट टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, है ना, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इन्होंने कंसल्टेंट के तौर पर काम किया, पोएट्री कंसल्टेंट के तौर पे, और कहाँ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है। और इनको पोएट लॉरियट ऑफ वर्मोंट के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और साथ ही साथ में इनको न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों पेन नेम है इनके, ठीक है, याद रखना। अवॉर्डेड द कांग्रेगेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर, ठीक है। ये जो अवार्ड है कांग्रेगेशनल गोल्ड मेडल, ये अमेरिकन गवर्नमेंट देती है ना, जो व्यक्ति लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये आगे मैंने आपको बता दिया है कि जॉन एफ कैनेडी का जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन था, तो उसमें उन्होंने पोम रिसाइट करी, ठीक है। चल आगे चल, एक बात और याद रखना, इनकी जो फेमस पोम है रोड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इसको जवाहरलाल नेहरू साहब अपनी टेबल के नीचे रखते थे, इतनी अच्छी पोम है ना, रोड नॉट टेकन। मैं जब इसको समझाऊंगा तो आप समझेंगे कि इतनी गहराई इस पोम में क्या है जो इतनी फेमस है ना। ऊपर ऊपर से ओवरली तो ओवर्टली कोई भी समझा देता है, लेकिन मैं जब इसको समझाऊंगा तो बहुत डीप डाउन हो गया, आपको समझ आएगी इसकी आत्मा पोम की, है ना, कि पोर्ट जो है वो कहना क्या चाहता था उसके। अब पर्सनल लाइफ एंड ट्रेजेडीज की बात की जाए तो फ्रॉस्ट एंड एलिनर हैड 6 चिल्ड्रन, उनके तकरीबन 6 बच्चे थे। ओनली 2 सर्वाइव्ड, 6 में से केवल 2 बच पाए, ठीक है। सेवरल डाइड यंग और सफर्ड मेंटल इलनेस, अ रिकरिंग सोर्स ऑफ ग्रीफ इन हिज लाइफ, है ना। यही बच्चों का खोना, बच्चों की डेथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को इन्फ्लुएंस कर गई एक फेमस वर्क लिखने के लिए जिसका नाम है होम बरियल। क्या नाम है, क्या नाम है, होम बरियल, ये पोम है। इसमें फ्रॉस्ट साहब बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो है एक बच्चा जिसकी डेथ हो जाती है ना, और उस बच्चे का जो कब्र कह सकते हैं, है ना, उसको उसके घर में ही दफना दिया जाता है, जिसकी वजह से माँ जो है अपने बच्चे की कब्र को घर में देख नहीं पाती है, तो वो घर छोड़ देती है ना? साथ में पिताजी भी चले जाते हैं। फिर दोनों का जो इमोशनल बॉन्ड था उसमें कहीं ना कहीं गैप हो जाता है, क्योंकि जो मेल होते हैं उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, फीमेल का थोड़ा अलग होता है। तो ये उस विषय में पोम बात करती है, ठीक है। These personal hardships deepened the theme of loss, endurance and stoicism in his poetry. इन हार्डशिप्स की वजह से उनकी पोम में आपको कई बार क्षमता जो होती है सहने की, वो है ना, और कई बार लॉस की थीम, कैसे बचपना खो जाता है ना, कैसे हम लॉस में हैं कि हम अपनी आंखों से किसी प्लेजरेबल साइड को विटनेस नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज वी हैव सम सॉर्ट ऑफ ड्यूटीज टू परफॉर्म, है ना। और स्टोइसिज्म ऐसे है कि अब जो जाता है तो जाए, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें व्यक्ति को पता है कि अंत में मेरे हाथों में कुछ नहीं रहना है, हर व्यक्ति को छोड़ के जाना है, और मटेरियलिस्टिक चीज जैसा कुछ होता है, ठीक है। अब इनकी डेथ एंड लेगेसी के बारे में देख लीजिए। फ्रॉस्ट डाइड ऑन जनवरी 29 इन 1963 इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स एट द एज ऑफ 88, ठीक है, 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बरीड इन द ओल्ड बेनिंगटन सेमेट्री, ये याद रखना सेमेट्री का, ओल्ड बेनिंगटन सेमेट्री, इनमें जो है इस सेमेट्री में जो है इनका कब्रगाह बनाया गया है, ठीक है, बर्मोंट में है जो कि, है ना। हिज एपिटैफ फ्रॉम हिज पोम द लेसन फॉर टुडे, इनकी फेमस पोम है द लेसन फॉर टुडे, इस नाम से इनकी पोम है। होल्ड ऑन, लेट मी हाईलाइट इट वन सेकंड with another color. Listen, the lesson for today के नाम से इनकी एक फेमस पोम है, उसमें एक फेमस लाइन है, I had a lover's quarrel with the world। इस लाइन का मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे हो। लवर्स क्वेरल समझते हैं? लवर्स क्वेरल एक इस प्रकार का क्वेरल जिसमें व्यक्ति रोज लड़े, रोज बात करे, रोज लड़े, रोज बात करे, रोज लड़े, रोज बात करे, है ना। तो ये जो लाइन है ये लिखी हुई है उनकी कब्र के ऊपर, है ना, आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ल्ड।
और ये किस पोम की लाइन है? द लेसन फॉर टुडे। ठीक है, इसी प्रकार से पीबी शैले नहीं, क्षमा चाहूंगा, जॉन कीट्स की उस पर लिखा, जॉन कीट्स की पे शायद लिखा है, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इस कब्र में वो लेटा है जिसका नाम जो है पानी पे लिखा हुआ है ना? ये उनकी कब्र पे लिखा हुआ है, किसकी? कीट्स की पे। अब यदि बात की जाए विलियम शेक्सपियर पे, तो उनकी कब्र पे लिखा है ब्लेस्ड बी दोज हु सेट्स माय बोन एंड कर्स्ड बी दोज हु रिमूव माय स्टोन, है ना? तो ये फेमस लाइन है जो शेक्सपियर साहब की कब्र पे लिखी है। ये कुछ फेमस लाइन थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है ना? टुडे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेलिब्रेटेड एज अ क्विंटेसेंशियल, मतलब एसेंशियल, जरूरी, इंपोर्टेंट। उनको न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से जाना जाता है एंड अ मास्टर ऑफ नरेटिव एंड लिरिक वर्स, है ना? इनको मास्टर ऑफ लिरिक वर्स के नाम से जाना जाता है। हिज एबिलिटी टू मर्ज एवरीडे अमेरिकन स्पीच विद टाइमलेस थीम ऑफ नेचर, individuality and moral choice has kept his poetry एंड्यूरिंगली पॉपुलर, है ना? उनकी जो पोम्स थी वो सदाबहार हैं, कालजयी हैं, जिनका समय के साथ में क्षरण नहीं होगा। वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, फ्रेश रहेंगी, सब्जेक्ट हमेशा फ्रेश रहेंगे। इवन जब हमारे जीवन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आगे चल के भी नेचर की तरफ झुकाव रखेगा। तो ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जो नेचर पर पोइट्री लिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग उस पोइट्री की तरफ झुकेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है। ठीक है, अब जो फ्रॉस्ट का हॉलमार्क है, फ्रॉस्ट किस हॉलमार्क की वजह से पॉपुलर है वो देख लीजिए। उनकी जो मेजर थीम्स हैं जो उन्होंने उनके वर्क में इस्तेमाल करी हैं, उसमें नेचर, रूरल लाइफ, इंडिविजुअल चॉइस, है ना? ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर फेमस वर्क है, रोड नॉट टेकन। ठीक है, ये अपने सिलेबस में है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। ड्यूटी, आइसोलेशन, रेजिलियंस, डेथ, ये कुछ फेमस थीम्स हैं। यदि उनकी स्टाइल की बात की जाए तो उन्होंने, देखिए, सोनेट्स भी लिखी हैं, राइमिंग स्टेंजास भी लिखे हुए हैं, और ब्लैंक वर्स में भी लिखा हुआ है। वैसे हु इज फादर ऑफ ब्लैंक वर्स? चलिए मैं बता देता हूँ, हेनरी हॉवर्ड, है ना? याद रखना है, जिनको अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जाना जाता है, हेनरी हॉवर्ड, और साथ में थॉमस यार्ड। इन दोनों ने मिलकर जो है पेट्रार्कन सोनेट को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। इवन इंग्लिश सोनेट के फादर इनको कहा जा सकता है, वो अलग बात है कि विलियम शेक्सपियर साहब ने सोनेट को ज्यादा फेमस बना दिया। ठीक है, याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस देखिए क्या है। His work bridges 19th century formalism and 20th century modern themes influencing generation of poets। तो मैंने यहाँ तक आपसे बात कर ली है किसकी? मैंने आपसे यहाँ बात की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की बायोग्राफी की। मैंने कई मेजर वर्क्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कुछ ऐसा छोड़ा है जो इस लेक्चर से बाहर जाए, शायद नहीं जाएगा, 99% नहीं जाएगा, है ना? तो आप अच्छे से एक दो बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और कोशिश करिए वीडियोस को शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, है ना? उससे क्या होगा, चैनल ग्रो होगा ना। तो ऑल्दो मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन मैं यहाँ फोकस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी लैंग्वेज पे और उसके साथ ही साथ फ्लुएंसी पे और अपने नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकूँ, है ना? यही मेरा सोलो रीजन है यहाँ पढ़ाने का। नॉट फॉर गेनिंग एनी मनी, है ना, बिकॉज आई हैव इनफ मनी टू हैंडल माई सेल्फ। अब मैंने कई आपको पोम्स बता दी हैं, इनमें यदि कोई पोम्स बची हुई हैं तो एक पोम है अ टफ्ट ऑफ फ्लावर्स 1913। मैं लिख देता हूँ आपको, इनको भी देख लेना, है ना? तो देखना क्या, नाम याद रखना, नहीं पूछेगा ऐसा कोई लोड वाली कोई बात नहीं। एक पोम है अ टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, ये एक फेमस पोम है। ठीक है, और इसको 1913 में लिखा गया, है ना? ये एक फेमस फेमस पोम है, इसको भी याद रखना। साथ में द ब्लैक कॉटेज, ठीक है, ये भी एक पोम है, इसको 1914 में लिखा गया। एक और फेमस पोम है द एक्स हेल, ठीक है, इसको 1923 में लिखा गया। और एक और फेमस पोम लिख देता हूँ, टू
ड्रम्स इन मड, मड टाइम। ठीक है, तो ये 4 पोम्स हैं, आपको याद रखना है ना। 1936। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ भी बाहर जाएगा, जो भी है यही है। ठीक है, याद रखना। अब सुनिए, टू ट्राम इन द मड टाइम, ये मैंने आपको बता दिया। टफ्ट ऑफ फ्लावर्स एक फेमस पोम है। इसमें क्या होता है, आपने कई व्यक्ति देखे हो, कृषि होने के बाद में कई बार बारिश वारिश हो जाती है, तो छोटा छोटा ऐसा घास प्रकार का जम जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती किसान, जब उसको खेती करनी हो किसी अन्य फसल की, तो उसको साफ करते वक्त एक क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो सफाई कर रहा होता है, तो उसके रास्ते में आता है अ टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, है ना, मतलब एक गुच्छा फ्लावर्स का कोई पेड़, जिसको वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक और व्यक्ति दूसरा कुछ काम करता है, वो पीछे से आ रहा होता है, तो वो पाता है कि किस प्रकार जो व्यक्ति यहाँ से गुजरा है, जो सफाई कर रहा है कर्मचारी, उसने इसको काटा नहीं, तो फिर वो भी छोड़ देता है। तो इस प्रकार से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो चीज नेचुरल है, ब्यूटीफुल है, उसको हार्म ना किया जाए, उसको रहने दिया जाए, है ना। तो ये उसके बारे में बात करती है, द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स 1913। बाद में की बात की जाए द ब्लैक कॉटेज की, तो ये पोम जो है वो डिस्क्रिप्शन देती है एक लेडी का, जो बहुत ही डिवोटेड लेडी थी अपने धर्म के रिचुअल के प्रति, और वो आज इस ब्लैक कॉटेज में नहीं रह रही है। तो नरेटर और साथ में एक मिनिस्टर, ये दोनों डिस्कस कर, तो ये सारे एक्स हेल्प, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो आपने कहीं देखा हो, लोहा पीटने वाले होते हैं, है ना, जो हथियार बनाते हैं और एक्स वगैरह बनाते हैं। तो एक व्यक्ति है जो एक्स हेल्प का मतलब होता है हैंडल, है ना, तो जो एक्स हेल्प है, जो एक्स हेल्प बनाने वाला व्यक्ति है, तो उससे नरेटर जाके मिलता है, तो उसे फिर इन्वाइट करता है। इसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट दिखाई गई है लेबर क्लास के लिए। तो ये सारी पोम्स थी, और मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की पोम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।